Hello guys, welcome you all in your Study Guru and Computer Fundamental series. This is Krishna Gupta. In previous video, I have discussed about the computer and computer related terms and hardware and software. Now in this video, we will learn about computer characteristics. So let's start the computer characteristics. First, these all are the discussion points: speed, accuracy, no IQ, wisdom and diligence, data storage, no feelings, power of remembering, automation, reliability, versatility, no heuristics. So these all are the points we will cover in this video. So you can see the icons of these points and related to these points. First is speed, speed, and then accuracy. This is no IQ, and diligence, storage, no feeling. This is the power of remembering. This is the automation. This is the reliability. This is the simple versatility and new heuristic. So these all are the points we will cover in this video. So let's start from the speed. So first is speed. What is speed first? Speed is simple, how to do your task in different time. That is, a computer computes problem much faster than human being. It can perform millions of instruction in few seconds. So कंप्यूटर एक कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने में फ्यू सेकंड्स या मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स या पिको सेकेंड इस तरह से आपका कंप्लीट कर देता है. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं. ये फास्ट जो कंप्यूटर होता है वो फास्ट डिवाइस है. परफॉर्म एनी टास्क इन फ्यू सेकंड्स. कोई भी टास्क को कम से कम सेकंड्स में परफॉर्म कर सकता है. कंप्यूटर हैज़ नो यूनिट ऑफ कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड in milliseconds, like 10 raised to power -3 and 10 raised to power -3, microsecond 10 raised to power -6, and nanosecond 10 raised to power -9, and picosecond 10 raised to power -12. So these all are the measurement units. So what we can say? Simple. Generally, speed of computer measures in MIPS. MIPS. Now, what is MIPS? MIPS. MIPS is million instructions per second. Simple. This is a full form. Now, we can take an example. If you want to calculate 2 plus 2, 2 plus 2, it is easy to calculate. Simple. You will calculate, and computer also can calculate. But if we have complex problem or calculation more required problems, like 2 5 2 5 3 5 6 plus 5 6 7 5 9 6, you can't be calculate easily, but computer can calculate its this problem also in few second, million instructions per second according to the time unit. So this is the speed. अब स्पीड की बात करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर होता है. प्रोसेसर में आपका कोर है, आपका i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है. तो प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग भी स्पीड वेरी करती है. या फिर आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, उस टास्क के साथ साथ आपके पैरेलल में नंबर ऑफ़ टास्क कितने ओपन कर रखे हैं आपने, कितनी एप्लीकेशंस आपकी रन एट ए टाइम कर रही हैं, तो इस पर भी आपकी स्पीड मैटर करती है कि आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन या टास्क परफॉर्म होगा उसको कितना टाइम लगेगा. तो सिंपल ये आपका हो जाता है स्पीड. नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी. व्हाट इज एक्यूरेसी? विद द हाई कंप्यूटेशन स्पीड कंप्यूटर्स आर एबल टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट. इफ इनपुट इज वैलिड, only then correct output will be produced, as computers follow GIGO, that is garbage in garbage out principle. So what will be the meaning of this accuracy or this line? So simple. Accuracy depends only on you because of computer have no IQ, no instructions settlement. So first is example we can take. It depends on user instruction. जैसा आप इनपुट देंगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा. बट इफ़ यू हैव
different calculation or instruction then, but if you give correct instruction there is no accuracy problem. सिंपल, अगर आप किसी भी कंप्यूटर को करेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपकी कैलकुलेशन जो मेज़र होंगी या कैलकुलेशन जो आपकी परफॉर्म होंगी वो एक्यूरेट होंगी, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा. इट मीन्स कि आप कोई भी लॉजिकल एरर अगर परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू तो कंप्यूटर वही रिजल्ट आपको देगा. इट मीन्स गार्बेज अगर आप इनपुट करेंगे तो गार्बेज आउटपुट मिलेगा. अगर आप सिंपल डिफरेंट इनपुट आप देंगे और वो करेक्ट इनपुट आपका होगा तो आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा. सिंपल. नेक्स्ट वन इज नो आई क्यू नो विजडम. सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ नो आई क्यू एंड नो विजडम? Simple, it is programmed to carry out task and perform exactly as instructed since it has no intelligence of its own. Simple, इसके पास नो आई क्यू है, नो विजडम. इसका खुद का अपना जो आई क्यू लेवल है वो 0 है. आपको अपने इंस्ट्रक्शन देने हैं, उसी के हिसाब से ये परफॉर्म करेगा. कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा. सिंपल. तो इसके अंदर क्या कह सकते हैं अपन? Now understand it. What is computer is a machine that has no intelligence. To perform any task, there we have to give instruction to the machine. It have no decision making power. Simple. अगर आप कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. इसके पास अपनी खुद की डिसीजन पावर और डिसीजन मेकिंग पावर कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं कर सकता है. सिंपल. तो ये आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीजेंस. व्हाट इज डिलीजेंस? इट कैन कैरी आउट टास्क ओवर अगेन विद एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट एवरी टाइम एंड इट डज सो विदाउट टायरिंग. ए कंप्यूटर फ्री फ्रॉम डलनेस, टायर्डनेस एंड lack of concentration. Simple. This icon is also represent the simple diligence concept. अगर आप कोई भी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप एक आपका लिमिट होगा काम करने का. आप 4 घंटे बैठ सकते हैं, 5 घंटे बैठ सकते हैं, आप 10 घंटे कर सकते हैं, आप कोई भी काम 12 घंटे कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक मशीन को अगर टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने स्टार्ट कर दिया और ऑन करके छोड़ दिया है तो वो आपकी मशीन कभी टायर्ड नहीं होगी, वो कभी आपका टास्क इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकती, या फिर आपके टायर्डनेस के थ्रू या फिर डलनेस के थ्रू आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सिंपल. कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड कंप्यूटर कैन डू रिपीट वर्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑल्सो. सो दिस इज द डिलीजेंस कॉन्सेप्ट. नाउ वी हैव डेटा स्टोरेज. Data storage. This is the storage icon. Using different kind of storage device, it can store huge quantities of data over the long period of time. Simple. डेटा आपके पास जो स्टोरेज है, कंप्यूटर कितना भी स्टोर कर सकता है. जैसे आपका कॉमनली यूज स्टोर्ड मेजरमेंट यूनिट लाइक बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, ये डिफरेंट आपकी स्टोरेज यूनिट्स हैं. और ये आपका कंप्लीट जो आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से आपकी डेटा को स्टोर करके रखता है. तो आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर, उनके अंदर जो टेराबाइट मेमोरी भी आने लगी है. तो उसके अंदर 1024 GB तक आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं आप उसको. लेकिन आपके माइंड में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? सिंपल. ये क्वेश्चन आता है. तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आपने स्टोर किया है वो आपका सेफ रहेगा. कभी भी आप किसी भी टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको मेमोराइज कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं. सो सिंपल. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज एंड डेटा परमानेंट स्टोरेज. नेक्स्ट इज नो फीलिंग. नो फीलिंग इट मीन सिंपल. कंप्यूटर हैव नो फीलिंग. कोई भी फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है. तो इट डज नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशंस, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. इसके पास कुछ भी नहीं है. ना इमोशंस है, ना टेस्ट है, ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस. दस इट डज नॉट गेट टायर्ड इवन आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क. इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर्स. तो ये आपके जो डिफरेंट यूजर्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स, उसका टेस्ट, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज नहीं समझ सकता. ये सिंपली डेटा से लर्न करता है और डेटा के थ्रू ही आपको इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करता है. और जैसा इंस्ट्रक्शन आप देते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन ये आपको रिजल्ट दे देता है. It cannot make the judgment based on feeling, taste, experience and knowledge unlike a human being.
ये आपको ह्यूमन बीइंग के हिसाब से जो फीलिंग्स, टेस्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज के हिसाब से जो मैं ह्यूमन बीइंग एक जजमेंट डिसीजन ले सकता है, उस हिसाब से आपका कंप्यूटर नहीं ले सकता। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नो फीलिंग। सिंपल। नेक्स्ट इज पावर ऑफ रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग सिंपली याददाश्त, आपकी याददाश्त, आपका आप कितने टाइम तक आप किसी भी चीज़ को कितने मोमेंट तक आप याद रख सकते हैं। तो एक आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, सिंपल दो मेमोरी हैं आपकी। तो इसमें क्या है, आपका कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन रिकॉल एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर्ड it for any number of years. It depends on entirely upon you, how much data you want to store in a computer, when to lose or retrieve these data also. So simple remembering power है इसके पास। आप कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, आपने 4 साल पहले किया, आपने कोई पिक्चर्स स्टोर की, आपने मूवी स्टोर की, आपने कोई सॉन्ग्स स्टोर किए, या फिर आपने कोई भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो इस तरह से डेटा आपका स्टोर होता जाता है और उसके अंदर मैनेजमेंट चलता रहता है और उसी हिसाब से वो डेटा को स्टोर करते करते, मैनेज करते करते आपके डेटा को सेव रखता है। और आप इन फ्यूचर उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप 7 ईयर्स पर के बाद में, आप 10 साल के बाद में, आप कभी भी उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग कैपेसिटी इसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑटोमेशन। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन सिंपल, अपने आप किसी भी चीज़ को चलना, या फिर कोई भी टास्क आपने एक बार कंप्लीट इनपुट दे दिया और उसके बाद इनपुट देने के बाद आपका टास्क ऑटोमेटिकली रन हो और आपको किसी भी इनपुट की रिक्वायरमेंट वापस ना हो। तो इसका मतलब है, वंस ए प्रोग्राम इज़ गिवन टू कंप्यूटर दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली। इट हैव any an ability to perform task automatically. Computer is an automatic machine. Simple, computer एक automatic machine है। आपने let's suppose we can take an example of daily life. आप प्रिंटर यूज़ करते हैं, आपका प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, आपने 1000 पेजेस प्रिंट करने हैं, 50 पेजेस प्रिंट करने हैं, तो आपने क्या किया, सिंपल प्रिंट कमांड दी, नंबर ऑफ़ पेजेस कितने आपको प्रिंट करने हैं वो आपने दे दिया। सिंपल उतने पेज आपको प्रिंट कंप्लीट करेगा, तब तक वो टास्क कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको प्रिंट कमांड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट मीन्स आपने वन टाइम प्रिंट कमांड दी, आपके 20 पेजेस प्रिंट होकर आ गए। सिंपल, दिस इज़ द ऑटोमेशन एग्जाम्पल। ऑटोमेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है रियल लाइफ में। हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम है, जैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं, वो इस ऑटोमेशन सिस्टम को यूज़ करती हैं, उसमें भी एक कंप्यूटर का रोल है। किस तरह से आपका डिटेक्शन होता है, किस तरह से काउंटिंग होती है, ये इसके अंदर भी ऑटोमेशन सिस्टम एक बार आपका स्टार्ट कर दिया जाता है और कंप्लीट आपका पैकिंग तक आपका काम कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम करता है और उसके बाद में आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। So these all are the concept of automation. Next is reliability. What is the meaning of reliability? The reliability to system of consistently perform it required function on demand and without failure. Simple, reliable, आप कितना उस पर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप कितनी रिलायबिलिटी उस कंप्यूटर के साथ रख सकते हैं। तो आपके पास पासवर्ड है, आप उसको कोई भी टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं और आपके पास डेटा सेव है, तो इन फ्यूचर वो डेटा आपका इरेज ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए भी ये रिलायबल होता है। आपकी हार्ड डिस्क या किसी प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम फेलियर हो सकता है, लेकिन हम उसका बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्सिटिलिटी. What is the meaning of versatility? The computer can perform broad variety of tasks. Computer can solve problem of each and every field at once. Occurrence may be solve a complex scientific problems. So simple, computer can use in any area, like medical field, education field, आपका साइंटिफिक फील्ड। तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया हैं। यहाँ पर एक आइकन है, ये एक ह्यूमन बीइंग का दिखाया हुआ है। इस ह्यूमन बीइंग को अगर हम कंप्यूटर से रिप्लेस कर दें, तो ह्यूमन बीइंग एक जो सिंपल एक पीपल है, वो आपका गार्डनिंग और किस तरह से आपका मोबाइल को एक्सेस कर रहा है, किस तरह से आपके किसी पेट को लेकर जा रहा है। तो सिंपल ये एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल का। लेकिन आप कंप्यूटर में आप कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर सकते हैं एट ए टाइम, कंप्यूटर आपका किस तरह से यूज़ किया सकता है, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्सैटिलिटी. सो लास्ट वन इज़ नो ह्यूरिस्टिक्स.
A computer is a dumb machine, thus the never ever learn from the past experience. So simple. हम कोई भी न्यू हेरिस्टिक्स का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हमने कोई टास्क कंप्लीट किया और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने जा रही हूँ और वो थोड़ा सा रिलीवेंट है या फिर उससे, तो उससे मुझे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मैं नेक्स्ट टास्क किस तरह से कंप्लीट करूँ। तो इस तरह से मैं पास्ट एक्सपीरियंस से भी अपने नए टास्क कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। न्यू हेरिस्टिक मतलब कि आपका जो मशीन एक तरह से डम्ब है, आपको वापस से पूरा प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस वापस से आपको पूरा कंप्लीट देना होगा। वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन या कमांड से आपका इनपुट नहीं ले सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड नो हेरिस्टिक्स. So thanks for watching. These all are the points I have covered in this computer characteristic. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.